સાબરમતી કલોલ મહેસાણા સેક્શન પર જનરલ મેનેજર વિવેક કુમાર ગુપ્તાનું મેગા નિરીક્ષણ યોજાયું। સાબરમતી કલોલ મહેસાણા સેક્શન પર જનરલ મેનેજર વિવેક કુમાર ગુપ્તાનું મેગા નિરીક્ષણ। અમૃત ભારત યોજના હેઠળ કલોલ અને મહેસાણા સ્ટેશનોનો ચહેરો બદલાશે। આગામી 5 વર્ષમાં ટ્રેનોની સંખ્યા બમણી કરવાની તૈયારી। ગેજ કન્વર્ઝન પૂર્ણ। CRS રિપોર્ટ બાદ નવી ટ્રેન સેવાઓ શરૂ થવાની સંભાવના। મીડિયા સાથે વાત કરતા જનરલ મેનેજર વિવેક કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે આવા નિયમિત નિરીક્ષણો દ્વારા સલામત અને સરળ રેલ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આંબલિયાસણ બીજાપુર અને આદર્શ મોટી બીજાપુર વચ્ચેનું ગેસ કન્વર્ઝન કાર્ય પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે અને CRS રિપોર્ટ બાદ નવી ટ્રેન સેવાઓ શરૂ થવાની શક્યતા છે। આગામી 5 વર્ષમાં મોટા શહેરો માટે ટ્રેનોની સંખ્યા લગભગ બમણી કરવાની યોજના પણ જાહેર કરવામાં આવી છે। આ નિરીક્ષણ સમયે મહેસાણા રાજ્યસભાના સાંસદ મયંક નાયક, જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ ગિરીશ રાજગોર, ધારાસભ્ય સુખાજી ઠાકોર સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા। ચેતન પટેલ, મહેસાણા। આજે રેલવેના GM સાહેબ અને DRM સાહેબ સહિતની આખી ટીમ જેના વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન હોય છે એ અંતર્ગત નવા ડેવલપમેન્ટ અંતર્ગત જોવા માટે અને રેલવે દ્વારા વધુમાં વધુ સેવા કેવી રીતે આપી શકાય એના પરીક્ષણ માટે આજે અહીંયા મહેસાણા ખાતે પધાર્યા છે। આપ સૌને મારે જાણકારી એટલા માટે આપવી છે કે મહેસાણાના વગેરે થઈ ગયું છે। આપણા TB રોડ ઉપરની જે RUB 2 પાસ થયેલા છે એનું કામ પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થનાર છે। આવનારા દિવસોની અંદર રેલવે દ્વારા અહીંયા જે પ્લેટફોર્મની અંદર એક રેસ્ટોરન્ટ, એક મોલ આપણા મહેસાણા શહેરના પણ અંદર બનવાનો છે। રેલવે દ્વારા આખું આધુનિકીકરણ મહેસાણાથી અંબાજી આબુ રોડ સુધીની નવી લાઇનનું પણ કામ ચાલી રહ્યું છે। એટલે માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં અને આપણા રેલવે મંત્રી અશ્વિનીજી જે પ્રકારે આખા દેશમાં રેલવેનું નેટવર્ક તૈયાર કરી અને લોકોની સુખાકારી થાય, લોકોને રેલવે દ્વારા વધુમાં વધુ પ્રવાસ થાય અને પર્યાવરણની પણ જાળવણી થાય, એટલે ઇલેક્ટ્રિક માધ્યમથી 100% જ્યારે રેલવે આખા દેશમાં થઈ ગયું છે ત્યારે મહેસાણા જિલ્લા અને મહેસાણાની આજુબાજુમાં જેટલા પણ ખેડૂતોના પણ પ્રશ્નો છે એના માટે રેલવે સકારાત્મક રીતે એના ઉકેલ માટે તૈયાર છે। જ્યાં RUB ના પ્રશ્નો છે એના માટે પણ રેલવે માટે ની સકારાત્મક ભૂમિકા છે। એટલે કુલ મિલાવીને રેલવે અને પ્રજાજનો બંને સાથે મળી અને દેશના વિકાસમાં કેવી રીતે સહભાગી થઈ શકાય એના માટેનો આખો માન્ય GM સાહેબ અને DRM સાહેબ સહિતના અધિકારીઓનો આજે પ્રવાસ છે। જિલ્લાના ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ આજે ઉપસ્થિત છે। અમારા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ સહિતના લોકો, DRUCCના, ZRUCCના પદાધિકારીઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। કુલ મિલાવીને રેલવે દ્વારા ભારતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં વધુમાં વધુ લોકો ઉપયોગ થાય, સુખાકારી થાય અને ઝડપી ટ્રેનોનો લોકોને લાભ મળે એના માટે જે રેલવે તંત્ર માન્ય પ્રધાનમંત્રીજી અને અશ્વિની વૈષ્ણવજી જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એમાં રેલવે મંત્રાલય એના ટાર્ગેટો પૂર્ણ કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે અને એના ભાગરૂપે આજે GM સાહેબ મહેસાણા પધાર્યા છે। ઘણા નાલા અને ઘણા પાણી ભરાવાની સમસ્યાને કારણે લોકો હેરાન થાય છે। પ્રજાના પ્રશ્નો જ્યારે વિકાસ થતો હોય ત્યારે પ્રશ્નો આવા સહજ ભાવ છે। પ્રશ્નોનું નિરાકરણ તંત્ર સાથે બેસી, હમણાં જ આંબલિયાસણની વાત કરી તો આંબલિયાસણનો પ્રશ્ન અમે સાંસદ તરીકે મેં અને આપણા માન્ય લોકસભાના સાંસદ હરિભાઈ બંને સાથે મળી અને જે પ્રજાના પ્રશ્નો છે વિસ્તારના એ રેલવે સમક્ષ મૂકેલા છે અને રેલવે તંત્ર એના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવે જ છે। પરંતુ જે સમય મર્યાદાની અંદર રેલવેના પ્રશ્નોની કેટલીક સમય મર્યાદા હોય છે। રેલવેનું તંત્રની કામ કરવાની એક ચોક્કસ પદ્ધતિ છે। એના કારણે જ્યારે કડીનો પ્રશ્ન હતો તો કડીના પ્રશ્નને પણ ઉકેલ માન્ય રેલવે મંત્રી દ્વારા અને GM સાહેબ ને DRM સાહેબ દ્વારા ઉકેલાયો। એટલે આવા તમામ પ્રશ્નોનો ઉકેલ રેલવે તંત્ર પ્રજા સાથે સુખાકારીથી કેવી રીતે રહી શકાય, લોકોને સુવિધા આપવા માટે રેલવે છે, લોકોને દુઃખી કરવા માટે રેલવે નથી। એટલે પ્રશ્નો તો આવવાના પણ એનો ઉકેલ સકારાત્મક લાવવામાં રેલવે તંત્ર હંમેશા પ્રજાની પડખે હોય છે। क्या कहेंगे अच्छी विजिट के बारे में? नमस्कार। जैसा आपको मालूम है, आज अहमदाबाद से लेकर पालनपुर तक जो एक रेलवे के संरक्षण और सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोग साल में एक बार वार्षिक निरीक्षण करते हैं। उसी के तहत पूरे सभी स्टेशंस का सुबह आप साबरमती से हम लोगों ने शुरू किया था 9 बजे से,
और पालनपुर तक सभी स्टेशंस का ट्रैक के जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे ब्रिज है, लेवल क्रॉसिंग है, टर्नआउट हैं, कर्व्स हैं, उन सभी का बहुत ही विस्तृत निरीक्षण का एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। उसी के तहत हम सभी अपने हेडक्वार्टर के सभी सीनियर ऑफिसर के साथ और मंडल रेल प्रबंधक और उनकी टीम के साथ आज यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। माननीय सांसद और माननीय विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं महसाना में, और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने अधिराज मोती से बीजापुर से अमलासन, ये पूरे ट्रैक का जो CRS इंस्पेक्शन होता है वो कंप्लीट कर लिया है, और बहुत जल्द ही वो सेक्शन पर भी हम लोग प्लानिंग करेंगे एक दोबारा से जो कन्वर्टेड सेक्शन है ब्रॉड गेज के ऊपर नई ट्रेन स्टार्ट करने का। और इस सेक्शन में जो डबल लाइन पूरी हो गई है, महसाना से पालनपुर कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पे DFC की लाइन भी बनी हुई है, उनमें भी हमारा ट्रैफिक का आवागमन काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। उसकी वजह से भी हमारा कुछ कैपेसिटी अवेलेबल है। हम उसकी पूरी एक वृहद प्लानिंग कर रहे हैं कि इस सेक्शन में और एडिशनल हम लोग कितनी ट्रेन चलाई जा सकती हैं। खास करके जिस जगह पे सब नाले, वहाँ बहुत सारी समस्या आ रही है, पानी निकाल नहीं होता, उस कई जगह पे ये पूरा मामला किसानों के है। एक गांव से दूसरे गांव लोग जोड़े हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग हुआ? देखिए, अभी जैसे लेवल क्रॉसिंग गेट्स होते थे पहले, उनकी जगह ROB और RUB, उन दोनों का हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है। जहाँ भी इस तरह की समस्या है, जनप्रतिनिधियों की डिमांड भी रहती है, और वैसे भी हमें भी पता रहता है कि जहाँ पुरानी लेवल क्रॉसिंग है, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, ट्रैक्स की संख्या बढ़ गई है, उसके मद्देनज़र यात्रियों को के साथ की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है ROB बनाने से, RUB बनाने से, और जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी आवागमन में किसी समय भी रेल की वजह से रुकने की आवश्यक ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी तो रेलवे ने ये डिसाइड कर लिया है कि पूरा फंडिंग भी रेलवे खुद करेगा। LC एलिमिनेशन, जो लेवल क्रॉसिंग एलिमिनेशन का एक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री का जीरो लेवल क्रॉसिंग का एक प्लानिंग तैयार किया हुआ है। उसके तहत सारे लेवल क्रॉसिंग्स पर या तो ROB या RUB बनाने की एक पूरी योजना तैयार की गई है। परिचालन की दृष्टि से कुछ जगह पर ये सुविधा नहीं हो पाती कि एक नंबर प्लेटफॉर्म पे सब गाड़ी आए, इसीलिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाता है और यात्रियों के लिए एस्केलेटर, लिफ्ट वो भी लगाए जाते हैं, क्योंकि जब डबल लाइन होने के बाद किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक ही डायरेक्शन गाड़ी आ सकती है, दूसरी डायरेक्शन की गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेना अनिवार्य हो जाता है, जिससे हम ट्रेन की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ में जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको देने के लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं और क्रमबद्ध तरीके से सभी स्टेशन पे वो सुविधाएं दी जा रही हैं। आपने देखा होगा महसाना में भी कितनी सारी सुविधा दी गई हैं। सारा स्टेशन का बिल्कुल सौंदर्यीकरण किया गया है, सर्कुलेटिंग इम्प्रूव किया गया है, प्लेटफॉर्म इम्प्रूव किए गए हैं, FOB इतना अच्छा बना दिया गया है, वो सब उसी प्लानिंग के तहत चल रहा है। सर, महसाना की तरफ पाटन भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहाँ भी बहुत सालों से काम चल रहा है हेरिटेज लुक से आता है, मगर काम इतनी धीमी गति से चलता है कि और पैसेंजर को बहुत दिक्कत होती है। तो काम झड़पी हो जाए इसके बारे में काम आपने मालूम है कि रेलवे काफ़ी संख्या में काम कर रहा है। जैसे मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं, 1337 स्टेशन अमृत स्टेशन सेलेक्ट किए गए हैं। सिर्फ वेस्टर्न रेलवे में 108 स्टेशन पे काम चल रहा है, तो काम ज़्यादा है। लेकिन आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं अगले 1 से 2 साल में सभी स्टेशन पे हमने जहाँ भी काम शुरू किया कंप्लीट कर लेंगे। भगत की कोठी चेन्नई की ट्रेन को वहाँ स्टॉपेज दिया गया है, मगर अभी रेलवे वालों को कागज पर कुछ नहीं मिला, तो स्टॉपेज नहीं भी हो रहा है, तो बहुत सारे पैसेंजर को महसाना तक आना पड़ता है। ये भी देख लेंगे हम लोगों ने धीरे धीरे। जैसे आपको मालूम है कि कोविड के दौरान कुछ जगह स्टॉपेज बंद किए गए थे, कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज रेस्टोर किए गए हैं, बट जहाँ पे अभी और आवश्यक होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से और स्टॉपेज भी रेलवे मिनिस्ट्री डेफिनेटली विचार कर रहा है और दे रहा है क्रमबद्ध तरीके से। गुजरात के ज्यादातर लोग महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं, यहाँ से कोई ट्रेन का डिपार्चर हो और सब नॉर्थ गुजरात सिटीजन को बेनिफिट मिले, इसके बारे में कोई आयोजन है या बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट पहले भी दी हुई है। माननीय सांसदों के साथ भी हम लोगों ने मीटिंग की थी, उसमें भी ये रिक्वायरमेंट हमारे नोटेड है। जैसे आपको मालूम है अहमदाबाद और साबरमती दोनों स्टेशन पे अभी काफ़ी बड़ा काम चल रहा है, और उनके तहत अभी साबरमती में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 वो बंद है, अहमदाबाद में प्लेटफॉर्म नंबर 9, 10, 11, 12 उन सब पे काम चल रहा है।
ये सब काम मार्च 26 तक या मैक्सिमम अप्रैल तक हमारे पूरा होने की उम्मीद है। उन काम के बाद मुझे साबरमती में और अहमदाबाद में दोनों में एडिशनल प्लेटफॉर्म की सुविधा मिल जाएगी। वहाँ से ट्रेन थ्रू जा पाएंगी मुंबई की तरफ। उसके बाद हम डेफिनेटली ये प्लानिंग में है यहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा आपने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा शायद, एक बहुत ही वृहद योजना तैयार की गई है जिसमें कैपेसिटी डबल करने की बात की गई कि जितनी ट्रेन, जैसे वेस्टर्न रेलवे में अभी आज की तारीख में हम 256 ट्रेन चलाते हैं, उनको बढ़ाकर 450 ट्रेन करने का प्लानिंग, 200 ट्रेन की करीब वृद्धि की जाएगी अगले 5 सालों में। तो वो क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा और सभी इलाकों को ध्यान में रखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। काम नहीं कर सकते आप? ट्रायल कुछ नहीं होगा, होगा तो अच्छे से होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक बता रहा हूँ, साबरमती अहमदाबाद में काम चल रहा है और एक बड़ी योजना हमने तैयार की है जिसके तहत एडिशनल ट्रेन चलाना ये हमारी प्लानिंग में है और हम करेंगे। सर, यात्राधाम बेचराजी में कॉमर्शियल बेस पे ट्रेन अभी शुरू है, पैसेंजर ट्रेन कब स्टार्ट हो सकती है? सर वो यात्राधाम है और खास करके रनूज लाइन तक वो बनी हुई है, लेकिन वो जो पैसेंजर ट्रेन चालू नहीं है। हाँ, वो मालूम है। बेचराजी रनूज के लिए जो एक CRS इंस्पेक्शन का प्लानिंग है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पेपर तैयार कर लिए हैं और बहुत जल्दी CRS का इंस्पेक्शन होने के बाद वहाँ पर ट्रेन चालू होना पॉसिबल रहेगा। एरिया भी है रतनपुर, बारिश में तो पूरा स्टेशन का सभी मेहसाना से होते हुए बिल्डी हमारा ऑलरेडी कनेक्शन अवेलेबल है। तो ऑल्टरनेट अभी जो भी प्लानिंग की जा रही है वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पैसेंजर और फ्रेट दोनों को ध्यान में रख की जा रही है। अभी पालनपुर से गांधीधाम, सामाख्याली, उधर भी डबल का 4 लाइन की जा रही है। तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी हमने हाथ में लिए हुए हैं ट्रैफिक के रिक्वायरमेंट को देखते हुए। सर, बीजापुर एम्बुलेंस जो ट्रेन है वो कब और कैसे? मैंने अभी बताया कि अधिराज मोती बीजापुर और बीजापुर से अमलासन दोनों सेक्शन का कमिश्नर और रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन हो चुका है। अभी हमें कुछ उसमें OHE का काम करना है, ओवरहेड इक्विपमेंट का काम करना है, जो अगले 1 या 2 महीने में पूरा हो जाएगा।